So dear students, today I am going to make a video on adverb clause. और मेरे जो last videos है, I have uploaded 2 videos on adjective clause and noun clause, but today my video will be on adverb clause. And the clause is a collection of some words which is subject verb combination, and adverb clause does the work of a adverb. It means that it's going to qualify the verb in the principal clause and also an adjective and another adverb too. So before we get into that, let's know what is an adverb first. क्योंकि आपको जो adverb clause जानने से पहले आपको adverb जानना भी बहुत जरूरी होता है कि क्या है adverb. पहले आप अच्छे से adverb समझ लीजिए and then we will know about adverb clause. Okay? तो एडवर्ब क्लॉज की एक वीडियो नहीं बनेगी, बहुत सारी वीडियोस बनेगी और आप सारे वीडियोस को एक एक करके देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा. तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज एन एडवर्ब फर्स्ट. सो आई हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ एन एडवर्ब. डोंट गो टू द एडवर्ब क्लॉज. फर्स्ट यू मस्ट नो अबाउट एडवर्ब. एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव and another adverb in a sentence. Okay, this is the definition which we have been learning since our childhood, and this is the exact definition of adverb. But today I want to tell you something more about adverb. It means that adverb does the work of not only defining verb, adjective and another adverb. It does so much work. You can say that except noun, pronoun and interjections, it does the defining all the parts of speech. Okay, so just I'm not going in so detail, but I will tell you few things about adverb. आज मैं आपको adverb के बारे में कुछ चीजें बताऊंगी जो कि बहुत ही important है आपको जानना adverb clause को जानने से पहले. हिंदी में इसे क्रिया विशेषण भी कहते हैं. तो पहले हम देखते हैं कि एडवर्ब क्या करता है. तो अभी हम देखेंगे कि कैसे वो एडवर्ब किसी सेंटेंस में आए किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है. पहले हम देखेंगे. लेट्स सी वर्ब. First sentence I have taken two sentences, examples, so that you can understand it fully. His life finished so quickly. Here the example is his life finished so quickly. So here we see that his life, this is subject, and finished, this is verb. Okay, so this one is verb, and so quickly, his life finished so quickly. So here we see that this is verb. Okay, so and quickly both are adverb. We are talking about his life. Okay, so this is verb, his life finished, and this is verb, and this adverb is modifying this verb in this sentence. ठीक है. अभी यहाँ पे देखते हैं कि इस वर्ब के बाद हमारा एडवर्ब आया है so क्विकली. तो द इस लाइफ फिनिश सो क्विकली पहला एग्जाम्पल है. सेकेंड वन इज राम स्पीक्स लाउडली. हाउ डज ही स्पीक? राम कैसे बात करता है? लाउडली, जोर से. ठीक है. सो दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब, and this adverb it's defining this verb in a sentence. Okay, or modifying this verb in a sentence. अब यहाँ पे जैसे finished है और ये quickly है आपका adverb, तो adverb इस verb को जो है क्या कर रहा है? modify कर रहा है. और यहाँ पर जैसे आपका verb है speak और इस verb को modify कर रहा है loudly. अभी यहाँ पे देखते हैं कि कैसे एडजेक्टिव को कोई एडवर्ब जो है वो क्वालिफाई कर सकता है. रवि इज एक्सट्रीमली फनी. यहाँ पे फनी है आपका एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एक्सट्रीमली है, ये है एडवर्ब. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एडवर्ब जो है इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है या क्वालिफाई कर रहा है. ठीक है. This
lady is quite pretty. So this lady, this is subject and is quite pretty. So we see this pretty is adjective and this quite is adverb. ठीक है, तो इस adjective के पहले जैसे यहाँ पे extremely आया है, यहाँ पे quite आया है, तो ये दोनों इसकी बात कर रहे हैं कि रवि जो है बहुत ज्यादा फनी है और ये लेडी जो है क्वाइट प्रिटी, काफी हद तक जो है लड़की वुमेन जो है सुंदर है, ठीक है, प्रिटी है। नाउ एडवर्ब, अब हम देखते हैं कि कैसे कोई एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। माई सिस्टर रन्स वेरी फास्ट, सो यू वी सी माई सिस्टर सब्जेक्ट रन्स एंड वेरी फास्ट, सो फास्ट इज this is an adverb and we see that this very is also an adverb. So this adverb is modifying this adverb. So this is the work of an adverb कि adverb क्या करता है, किसी दूसरे adverb को भी modify करता है। अब यहाँ पे देखिए she spoke quite slowly, अब यहाँ पे जो है she spoke कैसे बात की उसने, quite slowly, यहाँ पे दो adverb है slowly and quite, दिस इज एडवर्ब और इस एडवर्ब को यहाँ पे ये वाला एडवर्ब जो है क्वालिफाई कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है। ये तो हमारे तीन एग्जाम्पल्स हो गए, दैट वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अभी हम देखते हैं कि जो प्रेपोजिशन है वो भी कैसे एडवर्ब के द्वारा गवर्न होती है। कभी कभी सेंटेंस में जो है, मतलब मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि एडवर्ब का जो काम है वो बहुत ज्यादा काम है, तो वहां पे वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन को कैसे एक एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है। देखिए, द बर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड, सो बर्ड फ्लू, द बर्ड, दिस इज सब्जेक्ट, फ्लू दिस इज वर्ब एंड वी हैव एग्जैक्टली, दिस इज एडवर्ब एंड आफ्टर दिस एडवर्ब वी हैव प्रेपोजिशन ओवर। तो इस ओवर को जो है ये एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है कि द बर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड, वो चिड़िया जो है एकदम एग्जैक्टली मेरे सर के ऊपर से गई, ठीक है। तो यहाँ पे ओवर प्रेपोजिशन है और एग्जैक्टली यहाँ पे एडवर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, द प्लेन इज जस्ट बिलो द होराइजन, ठीक है, द प्लेन इज जस्ट बिलो द होराइजन, तो यहाँ पे जो है जस्ट आपका एडवर्ब है एंड बिलो इज प्रेपोजिशन, तो इस प्रेपोजिशन के पहले भी यहाँ पे ये आया है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी एडवर्ब क्या करता है कि पूरे असर्टिव सेंटेंस को जो है वो मॉडिफाई करता है, और जब वो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है तो एक बात का ध्यान रखो बच्चों कि वो हमेशा सेंटेंस के शुरू में आता है। जब कोई एडवर्ब किसी सेंटेंस को क्वालिफाई करता है तो ऑलवेज इट कम्स इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस, ओके। नाउ अनफॉर्चुनेटली द थीफ वाज नॉट कॉट, अनफॉर्चुनेटली the thief was not caught, so you will see that unfortunately this is adverb, ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है उसके शुरू में आके। सेकेंड सेंटेंस, एविडेंटली यू वर मच डिस्ट्रेस्ड, यू वर, या मैंने दो बार लिख दिया है, एविडेंटली यू वर मच डिस्ट्रेस्ड एट द न्यूज, सो एविडेंटली दिस इज एडवर्ब, ओके। सो ये पूरे सेंटेंस को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हमने देखा कि नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के जो है एडवर्ब सबको क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन के रूप में हम देखते हैं कि नाउन जो है और प्रोनाउन इन दोनों को भी जो है एडवर्ब मॉडिफाई करता है। कैसे हम देख रहे हैं, अब देखिए, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस में लिख रही हूं, इवन द टॉर्चर कुड नॉट ब्रेक हिज स्पिरिट, ठीक है। या दूसरा मैं लिख रही हूं, ओनली यू कैन
द ट्रुथ। अब यहाँ पे जो दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, यू कैन सी कि यहाँ पे अभी जो हमारा एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली नाउन और प्रोनाउन को जो है एडवर्ब मॉडिफाई नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे एक रूल देखिए कि इवन द टॉर्चर कुड नॉट ब्रेक हिज स्पिरिट। तो यहाँ पे टॉर्चर क्या है? टॉर्चर है आपका नाउन, ठीक है, और यहाँ पे ये एडवर्ब इवन आया है उसके पहले, ठीक है। तो इवन क्या है आपका? ये है आपका एडवर्ब, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये एडवर्ब इस नाउन के पहले आके इसको मॉडिफाई कर रहा है कि इवन द टॉर्चर कुड नॉट ब्रेक हिज स्पिरिट। टॉर्चर तो उसके स्पिरिट को जो है उत्साह को तोड़ नहीं पाया। और यहाँ पे देखिए एक और जो है आपका एक्सेप्शन में आता है वो कि प्रोनाउन के पहले एडवर्ब नहीं आ सकता, लेकिन इसमें देखिए ओनली यू कैन टेल द ट्रूथ। अब यहाँ पे देखिए ओनली है, ये है एडवर्ब और यू है आपका प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन आ गया। तो ये दोनों रूल है। तो एडवर्ब का रोल बहुत ही बड़ा है। तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं, आपको एडवर्ब का थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको मिल ही गया होगा। तो हम जो बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज एन एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज इज द सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, ओके। इट हैज सब्जेक्ट, इट हैज वर्ब and it does the work of modifying a word and a verb, another adjective and another adverb also। तो ये क्या करता है, लेकिन जब हम क्लॉज बनाते हैं तो एक चीज आपको बहुत ध्यान रखना है कि जितने भी मैंने आपको ये एडवर्ब के बारे में बताया, इन सब का काम बहुत ही कम उसमें होता है, बहुत कम होता है। मोस्टली एडजेक्टिव जो एडवर्ब क्लॉज है उसका काम है कि वो मेन वर्ब में जो वर्ब आता है प्रिंसिपल क्लॉज में, उस वर्ब को ज्यादातर मॉडिफाई करता है। एक दूसरा एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, लेकिन मेन वर्ब में जो वर्ब है उसके बारे में ये ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें देता है कि कैसे, कहाँ पर, किस तरह, किस समय काम हुआ, उस वर्ब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि स्लाइड में कि एडवर्ब क्लॉज जो है वो क्या क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने 9 ये एडवर्ब क्लॉज के बारे में लिख के रखा है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, प्लेस, रीजन, रिजल्ट, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, कंडीशन, पर्पस, मैनर। तो ये सारे आपके एडवर्ब क्लॉज के बारे में बताएंगे। और जैसे आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, हाँ, कोई भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है, ठीक है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो यहाँ पर जैसे आपका यहाँ से प्रिंसिपल क्लॉज शुरू हो रहा है और यहाँ से आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से कोई एक कंजंक्शन हम लेंगे, जैसे टाइम का अलग है, प्लेस का अलग है, तो कंजंक्शन लेके यहाँ पे हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे रिटर्न होम। ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है जो पूरा मीनिंग देता है हमें। दे इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। दे रिटर्न होम। अब यहाँ पे मैंने एक कंजंक्शन लिया, when the sun set, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूं। तो ये हो गया, ये पोर्शन हमारा पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया और ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। तो यहाँ पे जो ये वर्ब है, प्रिंसिपल क्लॉज में जो वर्ब है उसके बारे में यहाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ये टाइम आपको बताएगा कि किस समय ये काम हुआ, कहां पर हुआ, किस कारण से हुआ, रिजल्ट बताएगा, कंपैरिजन बताएगा। तो यहाँ पर मतलब ये पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है एक प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव के बारे में बताएगा कि वो कब हुआ, किस समय हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया
प्रिंसिपल क्लॉज में आए किसी भी वर्ब के बारे में सबऑर्डिनेट क्लॉज पूरा उसकी जानकारी देगा। तो इस पर मैं आपको अलग अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि एक वीडियो से ये काम नहीं चलेगा। तो आज मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। एडवर्ब क्लॉज में आपका कुछ शब्दों का समूह जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब रहता है, और वो जो है एडवर्ब क्लॉज मेन क्लॉज में आए हुए किसी वर्ब के बारे में हमें जानकारी देता है, मोस्टली वर्ब के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, क्योंकि एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में टाइम, और उसके बाद मैं धीरे धीरे ये सारे चीज़ों को कवर करूंगी। स्टूडेंट्स, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक जरूर करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब तो जरूर ही करिए। थैंक यू सो मच।